ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ وزراء کو ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کروانے اور اپنے محکموں کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ اراکین نے مینجمنٹ کیڈر کے لیے رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس تمام متعلقہ وزراء کو ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کروانے اور اپنے محکموں کا دورہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت سندھ کابینہ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں برس مختلف محکموں کی 603 ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہوں گی، جبکہ رواں برس 84 ارب روپے کی لاگت سے 1669 نئی اسکیمیں بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ 11 ارب سے زائد اب تک 513 اسکیموں کے لیے جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ وزراء کو ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کروانے اور اپنے محکموں کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ کابینہ اراکین نے مینجمنٹ کیڈر کے لیے رولز میں ترمیم کی منظوری دی۔ اس عہدے کے لیے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کی قابلیت رکھی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے 433.25 ایکڑ اراضی SEC-MC کو دینے کی منظوری دے دی۔ یہ زمین 36 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ بات کریں گے سندھ کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ وزراء کو ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کروانے اور اپنے اپنے محکموں کا دورہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کابینہ اراکین نے مینجمنٹ کیڈر کے لیے رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے، بجٹ میں کم از کم آمدن 25,000 مقرر کی تو بہت تنقید کی گئی، ہمارے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا لیکن عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ مہنگائی جیسے میں نے آپ کو بتایا، بتانے کی ضرورت نہیں، اتنی باتیں ہو گئی ہے کہ اب لوگوں میں یہ حالت ہو گئی ہے مہنگائی کے نیچے دب کے اب وہ رو بھی نہیں سک رہے، ان کی یہ حالت کر دی گئی ہے۔ اور ادھر مسئلہ کیا ہے، ان کو قوانین لانے، آرڈیننس لانے اپنی مرضی کے، اپنے فائدے کے، تاکہ لوگوں کو اور دبایا جائے۔ فیصلہ حکومت کا کہ 25,000 روپے منیمم ویج کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہر جگہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کم سے کم 25,000 تنخواہ نہ دینے والے ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لوگوں کی تنخواہوں میں مہنگائی کے مطابق اضافہ نہیں ہوا، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اس ملک کے عوام ہیں، خاص طور پہ محنت کش ہے، جو تنخواہ کے جو کہتے ہیں نا کہ میری اگر بزنس ہے، مجھے وارہ نہیں کھاتی، میں 2 روپے بڑھا دوں گا قیمت اپنی چیز کی، لیکن اگر میں اپنے جو ورکر ہے اس کو پیسے نہیں دوں گا، وہ کہاں سے رہ سکے گا۔ اور اس 25,000 روپے منیمم ویج کے لیے ہم پراپر ایک طریقہ کار لگائیں گے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ اگر کسی کو یہ تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کہ جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی تھی، پہلے انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر کیس بنایا گیا، ان کا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف متحرک ہو گئی۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا بلدیہ وسطی میں DGSBCA کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سختی سے ایکشن لینے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور DGSBCA کو فری ہینڈ دے دیا۔ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات نے شہر کے حسن کو ختم کر دیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف پورے کراچی میں تیز تر آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات میں جو بھی ملوث ہو سب کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے آفس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری بلدیات DGSBCA ڈپٹی کمشنر سینٹرل سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں DGSBCA نے ضلع وسطی میں شروع کیے جانے والے آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ سید ناصر حسین شاہ نے DGSBCA کو غیر
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने की हिदायत कर दी। वजीर बल्दियात का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हर सूरत एक्शन लिया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले को अगर कोई गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल होती है तो उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। पुलिस की जानिब से शिकायत आई है कि SBCA के अफसरान FIR नहीं कटवाते। रेंजर्स भी ऑन बोर्ड है, जहां रेंजर्स की जरूरत पड़े उनसे मदद ली जाएगी। वजीर बल्दियात का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात ने शहर के हुस्न को खत्म कर दिया। गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ पूरे कराची में तेज तर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और DG SBCA को फ्री हैंड है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन ले। गैर कानूनी तामीरात में जो बेमुलव्विस होगा, वो चाहे इदारे का अफसर हो या कोई सियासी अमल दखल, सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। अगर नीयत साफ है तो हर चीज़ मुमकिन है और हमने ये शुरू किया हुआ है पूरे कराची में। पहले साउथ में पूरी टीम बनाई और वहाँ पे आपने देखा कि क्रैकडाउन शुरू है। आज सेंट्रल में आए हैं और यहाँ पे ये शुरू पहले भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने काफ़ी यहाँ पे किए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ इकदाम। अभी एक प्रॉपर तरीक़ेकार, एक प्रॉपर तरीके से होगा और आप देखेंगे कि पूरे कराची में एक बड़े पैमाने पे ये शुरू हो जाएगा इस तरह का जो एक्शन है। देखें वो अदालती अहकामात हैं, तो इसलिए अदालती अहकामात की रोशनी में देखते हुए उस पर देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं पूरे कराची में, उन पर अमल हटाया जाए। देखिए मैं तो आपके तवस्सुत से अपील करूँगा जितनी भी पॉलिटिकली तौर पर जो लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं कि वो इस मामले में हमें सपोर्ट करें और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले में हमें सपोर्ट करेंगे। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मजहबी त्यौहार पर जुलूसों को सिक्योरिटी और बल्दियाती खिदमात फराहम करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। सिंध हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश होती है कि शहर को सहूलतें फराहम की जाएँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर सिंध हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत सिंध ने जुलूसों की गुजरगाहों पर सड़कों की मुरम्मत बर वक्त की। मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मजहबी त्यौहार पर जुलूसों को सिक्योरिटी और बल्दियाती खिदमात फराहम करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। सिंध हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश होती है कि शहरियों को सहूलतें फराहम की जाएं। और अब कुछ बात करेंगे बल्दिया उज़्मा कराची के एंटी इंक्रोचमेंट सेल के हवाले से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियाँ और मेज़ें जब्त कर ली गई, जबकि न्यू कराची अल्लाह वाली चौरंगी पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें फुटपाथ पर कायम होटल और केबिन मिसमार कर दिए गए। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद में एंटी इंक्रोचमेंट कैंपसी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिला बस्ती में न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों 6000 रोड और 4000 रोड और 5 नंबर रोड वल्ला वाली चौरंगी पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट पर मौजूद केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पतारे, दीगर तजावुज़ात जब्त कर ली गयी।
ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस रेंजर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। कराची शहर में रोजाना की बुनियाद पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हाफिज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद में एंटी इंक्रोचमेंट कैंपसी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसका खात्मा किया जा रहा है। ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे की जा रही हैं और हमारे साथ इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, लेडी सर्चर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मिशन है कि इस शहर को तजावजात से पाक करेंगे और कराची को खूबसूरत बनाएंगे। और अब कुछ जिक्र करेंगे डेंगू वायरस का। आपको बताएं कि शहर कायद में डेंगू वायरस ने सर उठा लिया। शहर कायद में रोजाना सैकड़ों अफराद डेंगू का शिकार होने लगे। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद शहर में स्प्रे की मुहिम ताहाल शुरू ना की जा सकी। शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम पर कई सवालात उठने लगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अमर इसाक हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अमर इसाक, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? बिल्कुल हर गुजरते दिन के साथ शहर कराची में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात देखने में आ रहे हैं। गंदगी और गलाजत के ढेर यकीनी तौर पर जा बजा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वबाई अमराज फूट रहे हैं बल्कि लोग अब डेंगू वायरस में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। रोज की बुनियाद पर दर्जनों केसेस शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कि शहरी इंतजामिया हो या फिर जिला इंतजामिया, वो यकीनी तौर पर कोई इक़दाम करने को तैयार नहीं। कराची के मुख्तलिफ मकामात की बात कर ली जाए, ख्वाह वो नाज़िमाबाद का इलाका हो, लियाकताबाद हो या फिर नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो या जिला कोरंगी का रुख किया जाए तो मॉडल कॉलोनी हो या फिर जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हो, शाह फैसल हो, मलेर का इलाका हो, रंगी टाउन का इलाका हो, तो यकीनी तौर पर तमाम इलाकों में जाबाजा न सिर्फ कचरे के अनबार लगे हैं बल्कि गटर उबल रहे हैं। सीवरेज का गंदा ताफुज़ पानी कराची की सड़कों की जीनत बना हुआ है, जिसकी वजह से कराची के मकीन अब तरह तरह के वबाई अमराज में देश मुब्तला हो रहा है, जिसके अंदर पेट के अमराज शामिल है, जल्दी अमराज है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो कि सांस का मर्ज है वो भी तेजी से कराची वालों में जो है मुब्तला हो रहा है, फैल रहा है। उसके साथ साथ डेंगू वायरस ने एक बार फिर से कराची में सर उठा लिया है। जरूरत अभी समर की है कि हंगामी बुनियादों पर जो कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो कराची के मुख्तलिफ अजला में जरासीम का इस तरह करवाए डेंगू वायरस के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द इस तरह करे ताकि कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ हो सके और कराची वाले एक सेहतमंदाना पुरफ़ज़ा माहौल में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। जी, हमारे नुमाइंदे अमर इसाक हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि कराची में नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए अजियत बन गए। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर के करीब सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। नुमान गुल, बताइएगा कि इलाका मकीनों का इस हवाले से क्या कहना है? शहर कराची में या तो तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं किए जाते या जो शुरू किए जाते हैं वो कुछ टाइम बाद ही ज़ेरे इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त कराची के जितने भी इलाकों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं वो अब आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर पर, जहाँ पर आज से कोई तकरीबन 2.5 माह कबल सीवरेज का मसला सामने आया था और सीवरेज का पानी तेज़ी से शाहराह पर निकल रहा था, जिसके बाद मुतल्लिका इदारे ख्वाब गफलत से जागे तो, लेकिन यहाँ पर भी तरक्याती मंसूबे शुरू करने के बाद ज़ेरे इल्तिवा का शिकार हो गए। मेरा कैमरामैन जुनेद असलम आपको दिखा सके तो ये मनाजिर है कराची के इलाके गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर के, जहाँ पर शाहराह पूरी तरह से खोद दी गई है और यहाँ पर काम होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा। इस शाहराह से गुजरना मुसाफिरों के लिए वबाल बन गया है। इन खड्डों में ये जो खड्डे खोदे गए हैं सीवरेज लाइन डालने के लिए, अब इसके अंदर पानी भर चुका है जिसके ऊपर मच्छर भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ अमराज यहाँ से फैल रहे हैं। कचरा भी इसी खड्डों के अंदर है जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि यहाँ के इलाका मकीन भी
काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कराची के जितने भी मुख्तलिफ इलाके हैं, जो इलाके हैं उनमें भी यही हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं वो ज़ेर इल्तिवा हो चुके हैं। या तो वहाँ पर कोई सियासी मुदाखलत आ जाती है सामने, या फिर किसी और वजह के बाइस ये मंसूबे जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर के अतराफ में भी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इन खड्डों की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी सैयद नुमान को लम्हे बराह रास्त तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि शहर कराची में अधूरे तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए सहूलत के बजाय अब अजियत बन गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की शाहरा पर सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया, जिसके बाइस शहरी परेशानियों का सामना करने लगे। शहर कराची में सुस्त रवि का शिकार तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए अजियत बन गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में 8 माह से जारी सीवरेज लाइन डालने का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसके सबब शाहराह पर सीवरेज का पानी शहरियों को मुश्किलात से दो चार करने लगा। गंदे पानी से परेशान इलाका मकीनों का कहना था कि ये पानी हमारे लिए कई मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि मुतालिका इदारे तरक्याती काम शुरू करके भूल चुके हैं। 1 साल से ये रोड टोटल तोड़ के ये बनाया गया है, मगर अभी तक कोई बना नहीं है। इसमें से समझ लें कि बाहर इनके पाइप पड़े रह गए, अंदर जो पाइप लगा दिए इन्होंने फिटिंग कर दी, बाहर के पाइप हटाया नहीं है। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर पूरी गटर का लाइन की सीवरेज पूरी पानी से बह रहा है। आप सुबह के टाइम अगर आते तो आपको इतना रश और इतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती कि यहाँ पर किसी का कारोबार नहीं चल पा रहा। यहाँ नहीं, मैं तो तकरीबन पूरे कराची में देख रहा हूँ, सब जगह बड़ी कचरे की प्रॉब्लम है, सीवरेज प्रॉब्लम है, हर तरह की पानी की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से नया पाकिस्तान बन चुका है। चीन हुकूमत क्या कर रही है, यही कि भाई उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, उन अपने ऑफिस में बैठे हुए, ऐसी में उन्होंने आवाम की कोई खबर नहीं है। जिस टाइम वोट लेना होते हैं तो रोडों पे आ जाते हैं, जिस टाइम वोट मिल जाते हैं तो ये अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं या फिर बाहर घूमने चले जाते हैं। गटर का कोई बंदोबस्त करो ना भाई, ये तो बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत हालत ख़राब हो रही है, लोग परेशान हैं। गटर का पानी है, परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ में आने जाने में बंदों को तकलीफ हो रही है, पैदल हाल वालों को। शाहराह पर सीवरेज का पानी भर जाने के सबब बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं, जबकि इलाके में गंदा पानी शहरियों में कई बीमारियां फैलाने का बाइस भी बन रहा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में जारी मंसूबे की बार बार निशानदही के बावजूद तवज्जो न देना इंतजामिया की गैर संजीदगी की गवाही दे रहा है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची की नीपा चौरंगी से मुत्तसिल मसरूफ तरीन शाहराह सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के तहत टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि खस्ता हाल शाहराह पर गंदे पानी के सबब ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो गई। रोशनियों के शहर कराची में टूटी फूटी शाहराह और शाहराह पर सीवरेज का पानी ट्रैफिक एक्सीडेंट का सबब बनने लगा। शहर कायद में नीपा ब्रिज से मुत्तसिल इंतहाई मसरूफ और अहम शाहराह एक बार फिर खस्ता हाली का शिकार हो गई। शाहराह पर बड़े बड़े खड्डे ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर करने लगे। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील होने पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। मुसाफिरों का कहना था कि इस शाहराह से गुजरना हमारे लिए वबाल बन गया है। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है। 5 साल तो हो गए मुझे देखते हुए ये रोड बन नहीं रहा है, और यहाँ के जो है मैंने साहब हैं वो जो है लोगों में खाना तकसीम करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ उमूमन रोजाना 10 से 15 हज़ार गाड़ियों का आना जाना है। भाई कब से मैंने समझा कोई एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, जब करीब आया तो पता चला है खड्डे की वजह से हम परेशान हो गए ना। खड्डा इतना है कि डर लग रहा था कि कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ से ये नीपा चौरंगी नहीं है, ये लियारी नदी से गुजर कर आया हूँ माशाल्लाह से। मैं अल्लाह ताला सबको रहम करे इस कराची शहर के ऊपर। ये मेरा रास्ता है ऑफिस के वापसी का, ठीक है। ये हमेशा से यही रश मिलता है, आपको पता है। ये रश सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से ये पीछे तक जाम है। ये आपका ये जो ब्रिज है, नीपा के ब्रिज, ये वहाँ से लेके यहाँ तक जो है बस वो ट्रैफिक जाम है। एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, ख्याल नहीं है लोगों का। बहुत ज़्यादा परेशानी है। जहाँ हमें सफ़र 15 मिनट का होता है, वहाँ हमारा घंटा 1.5 घंटे पे चला जाता है। अब हम 5 बजे ड्यूटी से निकलते हैं और 6 बजे हम फिक्स पहुँचते हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन आधा कराची आपका गटर नाली में मेन होलों में बह रहा है। इसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है। खस्ता हाल इस शाहराह पर सीवरेज का पानी रोजाना की बुनियाद पर हादसात का सबब बन रहा है, जबकि सिंध हुकूमत समेत तमाम मुतालिका इदारे ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ सैयद नवान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
اور اب کچھ تذکرہ کریں گے گلشن اقبال کے عزیز بھٹی پارک کا. آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں نکاسی آب کا بوسیدہ نظام واٹر بورڈ کے لیے اب چیلنج بن چکا ہے. گلشن اقبال میں واقع عزیز بھٹی پارک سے متصل شاہراہ سیوریج کے پانی سے بھر گئی. پانی کھڑا رہنے سے مکین سخت پریشان, پیدل چلنا بھی اب دشوار ہو گیا. شہر قائد میں نکاسی آب کا بوسیدہ نظام متعلقہ اداروں کے لیے چیلنج بن گیا. کراچی میں عزیز بھٹی پارک سے متصل محکمہ باغات کو جانے والی شاہراہ پانی کا تالاب بن گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف یہی شاہراہ نہیں بلکہ پورا کراچی سیوریج کے گندے پانی سے بھرا ہوا ہے. حکومت کچھ سننے سے قاصر ہے. یہاں یہ لوگوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا اور یہ حالت ہے کہ گندا پانی بھرا ہوا ہے. محکمہ باغات بھی یہاں پر ہے لیکن وہ لوگ نہیں دیکھتے, ان کو جوں نہیں رہیں کان کے اوپر. بچے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, کوئی نہیں آ سکتا یہاں تفریح کے لیے. اور جو کوئی لڑکے وغیرہ آتے ہیں وہ دیواریں پھان کر کے جاتے ہیں. وہاں دیکھا ہے میں نے ادھر. بھائی یہ تو سارے گورنمنٹ کے کام ہے نا, لیکن گورنمنٹ بھی ایسے ہی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ ادھر چلے جاؤ, ادھر کتنی گندگی ہے, بدبو ہے, یہ وہ ہے. ادھر چلے جاؤ, یہ رہائش کے اندر کتنی گندگی لگی پڑی ہے بلاک نمبر 9 میں. یہ تو رہائشی علاقے ایسے گندے ہیں, یہ تو پھر بھی پانی کھڑا ہوا ہے. جدھر بھی آپ چلے جاؤ یہی حالات لگی پڑے ہیں. یہ عزیز بھٹی پارک ہے, اس میں جو ٹنکی کا پانی آ رہا ہے اس میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, جو آتا ہے ادھر تنگ ہوتا ہے. پانی میں جانے سے دشواری ہوتی ہے. کراچی کے بے شمار مقامات پر سرکاری اداروں کے باہر گندا پانی بلدیاتی نمائندوں کی نااہلی کا ثبوت پیش کر رہا ہے, جہاں اس پانی سے شہری ہی نہیں بلکہ سرکاری ملازمین بھی پریشان ہیں. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کو کچرے کے انبار سے صاف کرنے کا وعدہ تاحال وفا نہ ہو سکا. کراچی کے علاقے نیو کراچی 5D میں واقع پارک اور مسجد کے اطراف کچرا عوام کے لیے درد سر بن گیا, جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سے اٹھتا تعفن شہریوں کو موذی امراض میں مبتلا کرنے لگا. انتظامیہ نے اپنی آنکھیں بدستور بند کر لی. کراچی میں کچرے نے عوام کا جینا حرام کر دیا. شہر قائد کے علاقے نیو کراچی 5D میں واقع پارک اور مسجد کے پاس گندگی کے ڈھیر لگ گئے. علاقے میں کچرے سے اٹھتا تعفن شہریوں کو وبائی امراض میں مبتلا کرنے لگا. اس موقع پر عوام نے کہا کہ درخواستیں دے دے کر تھک گئے ہیں لیکن گندگی صاف نہیں ہو رہی. یہاں اتنا کچرا ہے کہ یہاں سے آنا جانا مشکل ہے. یہاں مسجد برابر میں کتے مرے پڑے, اور یہ جو کمرے بنے اس میں جو ہے ہرونچی آگے رہتے ہیں, رات کو چوریوں کا سامان لاتے ہیں. یہ چھوٹا سا یہ پارک ہے اور پارک کے اندر ہی سارا کچرا ہے. ادھر باہر بھی کچرا ہے اور یہ مسجد برابر میں, ادھر سے آنا جانا نمازیوں کا مشکل ہے. اور جب بارش ہو جائے تو یہاں اتنی گند ہوتی ہے کہ یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ کتنی گندگی, آنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے. کچرے کی وجہ سے کتے ہر طرح کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. کتے بالکل ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں لاوارثوں کی طرح. اور ادھر آگے تھوڑا آپ کیمرہ دکھائیں, وہاں پہ کتنا پانی ہے, کتنا پانی. پورا سال ہو گیا یہاں صفائی نہیں ہوتی, بالکل بھی صفائی نہیں ہوتی, کوئی توجہ ہی نہیں ہے ادھر. یہاں پر ہر چیز کی گندگی ہے, کوڑا کٹا ہے, گھر ہے, مکان ہے, لوگوں کے معصوم بچے بھی ہیں, بیماری زیادہ پھیل رہی ہے. اور کتے مرے پڑے ہیں اور جانور بھی مرے پڑتے ہیں. ہر چیز سے ہیروئن سے یہاں بیٹھ جاتے ہیں رات بھر. ہر چیز کا مسئلہ ہے, ہر کام مسئلہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہ ہونے کی برابر ہے. ایک گھر ہے میرا سامنے, اور یہ سامنے دیکھنے کتنا کچرا پڑا ہوا ہے. کتنی دفعہ ہم نے یہاں پہ نیٹ لگوا کے صفائی بھی کروائی ہے. پیچھے مسجد ہے لیکن کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. جب دیکھو آگے کچرا ڈل جاتا ہے, اٹھاتے نہیں ہے, پورا مہینہ ہو جاتا ہے. کراچی میں سیوریج اور کچرے کے ڈھیر سب سے زیادہ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. ساون کی رت ہو, عید جیسا اہم تہوار یا پھر کوئی مذہبی دن, ذکر ہمیشہ کچرے کا ہی رہتا ہے جو شہر کی خوبصورتی کو داغدار کر رہا ہے. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.